Hello students, today we are going to take up questions and answers of chapter 2 Diversity in the Living World. We are going to discuss NCERT questions as well as an extra section called Extra Gyan has been added in this video. So, question number 1. So you can see on the screen there are two types of seeds. Now what differences do you find among the roots and leaf venation? तो दो टाइप के सीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं. वन ऑफ इट इज व्हीट एंड वन ऑफ इट इज किडनी बीन्स. तो डिफरेंसेस फाइंड करना है ना आपको. तो बेसिकली व्हीट और किडनी बीन्स में मोनोकॉट और डाइकॉट का आप पता लगा लीजिए. व्हीट इज मोनोकॉट एंड किडनी बीन्स इज डाइकॉट, राइट. सो रिलेशन क्या है, मैंने आपको पहले के चैप्टर्स में जब मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तब मैंने आपको एक निमोनिक डिवाइस बताया था, एक मेमोरी डिवाइस विच इज डायरेक्ट. DI stands for dicot, RE stands for reticulate and T, the last T stands for taproot. So the general relation is that dicotyledon plants generally have taproot system and the leaves are of reticulate venation. Kidney beans क्योंकि dicot है तो क्या होगा, taproot system होगा और reticulate venation रहेगी, right? और wheat क्योंकि monocot है तो उल्टा होगा, fibrous root system है और parallel venation है. Hopefully you are clear with it. Now let us go to the second question. तो second question में you are given a space of A, B and C wherein you are required to write A for aquatic habitat, B for terrestrial habitat and C उन एनिमल्स को एनलिस्ट करना है जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं. तो कौन से है वो एनिमल्स, वो है एम्फीबियंस. तो ए के स्पेस में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे डॉल्फिन, व्हेल. बी में आएंगे हॉर्स, शीप, स्क्विरल, अर्थवर्म, पिजन. सी में एम्फीबियंस कौन कौन से हैं इसमें, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस. सो यहाँ पे आपको हैबिटेट्स के हिसाब से क्लासिफाई करना है. Now next question is question 3. Manu's mother told Manu that radish is a kind of a root. We all know radish is an edible root, right? So examine the radish and write what type of root it is and also what type of venation it has. So आपको radish का पता है, it is dicotyledon. So dicot plants क्या relation बताया था, direct, right? तो रेटिकुलेट लीफ वेनेशन होगी और टैपरूट सिस्टम होगा. टू जस्ट रिकैपिचुलेट, टैपरूट सिस्टम इज that which has one main root and there are small side roots arising from it. And reticulate leaf venation कैसा होता है, उसमें net like pattern होते हैं, spider web like pattern होते हैं arranged along the central mid rib of the leaf. Now we go on to question number 4. So we have to point out similarities and differences between mountain goat and goat found in the plains. Similarities, obviously both are goats, right? Both are goats and both are herbivorous. Herbivorous यानी कि क्या, जो animals plants खाते हैं, right? And the third one is the type of movement. Both walk, run or jump and have 4 legs. Now what is the difference? Of course, the habitat is one of the main difference, right? Habitat is what causes the adaptations to occur. तो habitat क्या है mountain goat की? Obviously it is mountain. और goat of the plains की plain. So mountain goat में क्या है? Mountain goat में है thick fur. थिक फर क्यों? क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को कोल्ड से, ठंड से बचाना है ना. और यहाँ पे गोट्स ऑफ द प्लेन्स दे हैव शॉर्टर एंड थिनर फर, क्योंकि उनको तो ज़रूरत ही नहीं है मोटे फर की. और माउंटेन गोट आपने नोटिस किया होगा काफ़ी मस्कुलर है, थोड़े हैवी बिल्ड के हैं. और गोट्स ऑफ द प्लेन कंपैरेटिवली हैव लीनर बिल्ड, थिन होते हैं. और माउंटेन गोट हैव स्पेशलाइज्ड हूव्स फॉर बेटर ग्रिप. हूव्स चाहिए ना बेटर ग्रिप के लिए, रॉकी सर्फेसेस से स्लिप कर जाएंगे वरना. और
Goats of the plain have just simple hooves for walking on the flat surface. Now we come on to question number 5. So here we have to group the following animals into 2 groups based on any feature other than those discussed in the chapter. तो चैप्टर में क्या डिस्कस किया था कि वी कैन क्लासिफाई एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दैट दे टेक, द प्लेस दैट दे लिव इन, टाइप ऑफ मूवमेंट. सो ये सब हमने डिस्कस किया था. तो इसके अलावा ये जो एनिमल्स हैं उनको क्लासिफाई हमने कैसे किया? फ्लाइंग एनिमल्स और नॉन फ्लाइंग एनिमल्स. फ्लाइंग एनिमल्स में कौन कौन से आ गए? पिजन है, बैट है, कॉकरोच है, ग्रासहॉपर है. कॉकरोच भी कभी कभी कुछ कॉकरोचेस उड़ते हैं. सो नॉन फ्लाइंग, काउ, टॉर्टोइस, व्हेल, फिश, लिजर्ड. नाउ वी गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. हाउ कैन फॉरेस्ट being cut down affect our surroundings and how can we address this challenge? हम फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट के लिए, तो क्या ये हमारी सराउंडिंग्स को अफेक्ट करेगा? हेविली अफेक्ट करेगा. इम्पैक्ट क्या है देखिए, सॉइल इरोशन. सॉइल इरोशन यानी कि जो ऊपर की सॉइल की लेयर है वो इरोड हो जाना, वो फ्लाई ऑफ हो जाना, और उसको करने से, उसका होने से बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है सॉइल की फर्टिलिटी पे, इफेक्ट पड़ता है क्रॉप यील्ड पे. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ऑफ कोर्स जो एनिमल्स हैं वो हैबिटेट पे डिपेंडेंट है. आप उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय करेंगे, आप फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ऑब्वियसली दे विल अल्टीमेटली पेरिश. डिसरप्शन इन वाटर साइकिल और रेनफॉल. ये जब मैं टॉपिक डिस्कस करूंगी ना ट्रांसपिरेशन, तब मैं आपको टोटल तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी. नाउ next is poor air quality. You know plants take in carbon dioxide and give out oxygen. तो अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में इतना बढ़ गया तो एयर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और क्लाइमेट चेंज भी होगा उससे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस. तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, रिटेन कर लेगा और उसको जाने नहीं देगा. तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है. नेक्स्ट इज वी हैव टू एड्रेस द चैलेंजेस एज वेल, है ना. हमने इम्पैक्ट देख लिया, अब हमें एड्रेस भी तो करना है, किसी तरीके से इन सब इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करना है, राइट. तो क्या हो सकता है दैट वी कैन इन्वॉल्व मोर कम्युनिटी, लाइक कॉलेजेस, स्कूल्स, इनको इन्वॉल्व कर लिया, और भी सारे जो प्लांट प्रोटेक्शन फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं, ग्रुप्स हैं, उनकी ज़्यादा मोबिलाइजेशन कर ली कि प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है और प्लांट्स और ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना. नाउ वी हैव टू ऑल्सो हैव स्ट्रिक्टर लॉज. जितने स्ट्रिक्ट होंगे लॉज उतना अच्छा, क्योंकि लॉज अगर स्ट्रिक्ट होंगे तो लोग डिफॉरेस्टेशन करने से डरेंगे, राइट. एंड लास्टली मोर प्रोटेक्टेड एरियाज. आपको पता है इंडिया में कितने प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, बायो रिजर्व्स हैं, तो इनको हमें और ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. We have to analyze the flow chart and we have to say what can be examples of A and B. तो क्या है फ्लो चार्ट? पहले देखिए प्लांट. ये प्लांट है, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो प्लांट है. एंड नेक्स्ट इट, डज इट हैव लीव्स? यस, सी इट हैज गॉट लीव्स. सो प्लांट हैज लीव्स. एंड डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन? यस, इट डज हैव रेटिकुलेट वेनेशन. मतलब किसकी बात की गई है? रेटिकुलेट वेनेशन किसका होता है? डाइकोटिलेडन्स का. तो ए किसका एग्जाम्पल देंगे आप? डाइकोटिलेडन का. और देखिए यहाँ पे नो लिखा है ना, नो मतलब क्या? किसका रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होता? ऑब्वियसली पैरेलल वेनेशन वाला. तो बी क्या है? पैरेलल वेनेशन, राइट. तो कौन से प्लांट्स के पैरेलल वेनेशन है? ऑब्वियसली मोनोकोटिलेडन्स. तो बी के केस में आप मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल देंगे. देखिए एग्जाम्पल्स क्या क्या है. तो डाइकॉट के एग्जाम्पल्स हैं, आप कोई भी दे दीजिए, मैंगो, रोज, हिबिस्कस. और बी क्या एग्जाम्पल देंगे? वीट, मेज, ग्रास. आप मोनोकॉट के एग्जाम्पल्स दे देंगे. नाउ वी कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. Raj argues with his friend Sanjay that hibiscus is a shrub.
What questions can संजय ask for clarification? तो इसमें संजय को क्या आस्क करना है? संजय को ऐसे क्वेश्चंस आस्क करने हैं जिससे पता चल जाए कि ये श्रब है कि नहीं. श्रब कैसा होता है दिखने में? वो मिड साइज होता है ना, हाइट ज़्यादा नहीं रहती, हाइट बहुत कम भी नहीं रहती, मीडियम रहती है. एंड हाउ इज द स्टेम लाइक? स्टेम कैसी है? थिन है, थिक है या वेरी थिक है? स्टेम है मीडियम थिकनेस की. और इज द स्टेम सॉफ्ट ग्रीन और वुडी? द स्टेम इज वुडी, यानी कि वो श्रब है. तो हिबिस्कस इज अ श्रब, क्योंकि उसने ये 3 जो कैटेगरीज है ना, ये 3 कैटेगरीज को सेटिस्फाई कर लिया है. तो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, कैरेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछेगा. ऐसा ही अगर हर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप वही पूछेंगे, हाइट कैसी है, स्टेम कैसा है, थिक है, थिन है, वेरी थिक है, या इज द स्टेम सॉफ्ट ग्रीन और वुडी, उसमें क्या आएगा? सॉफ्ट ग्रीन आ जाएगा. तो questions related to the characters are asked over here in such types of questions. Now we go on to question number 9. So based on the information in the table, find out examples of these plants for each group. तो ग्रुप क्या है? ग्रुप A and B, डाइकॉट, मोनोकॉट, उनके टाइप्स ऑफ रूट्स दिए हुए हैं. एग्जाम्पल्स क्या है? डाइकॉट के एग्जाम्पल्स अभी आपको डिस्कस करवा दिए हैं, रोज, हिबिस्कस, मैंगो. मोनोकॉट के वीट, मेज, ग्रास. 3-4 एग्जाम्पल्स आप रट लेना तो उतना ही काफ़ी रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट इज रिलेटेड टू दिस टेबल, what other similarity do plants of group A have? Now group A is dicot, so remember the relation, direct. क्या होगा? क्या रेटिकुलेट वेनेशन होगी? Yes, reticulate venation होगी. Now what other similarities do plants of group B have? B is monocot, so what they will have? Generally they will have parallel venation. Now we come on to question number 10. What differences do you observe in the feet of the duck compared to other birds? Which activity would the duck be able to perform using this part? तो डिफरेंस क्या है? डक में है वेब्ड फीट और पिजन के ना वेब्ड फीट नहीं होते, उनके टोज अलग अलग होते हैं. तो डक के जो वेब्ड फीट है वो उसको क्या करने में मदद करता है? वो उसको करने में मदद करता है स्विमिंग. और वो कहाँ आसपास घूमता है? पॉन्ड के आसपास मडी एरिया है ना, वेट सरफेस है, तो डक जो है वो स्लिप कर सकता है. तो ये जो वेब्ड फीट है ना उसको बेटर ग्रिप देता है. तो दैट इज व्हाई नेचर हैज एंडाउड दिस फीचर इन डक्स. नाउ वी गो ऑन टू द एक्स्ट्रा सेक्शन कॉल्ड एक्स्ट्रा ज्ञान. Differences can be asked between herb, shrub and tree. So in that case, what you have to do is you have to compare the height of the plants. You will also have to compare the stems. Also, you can compare the branches and the lifespan and give examples. For example, here, herb, shrub and tree. See, height is short. Herb की height कैसी है? Short है. और shrub की height कैसी है? Medium है. और tree is tall. And about stem, herb has green stem, thin stem and soft stem. Comparatively, if you see shrub, what it does have is a brown stem, not very thick stem and a hard stem. Tree has a brown stem, very thick stem and very hard stem. So here is the difference based on the height and the stem. Now we come on to the branch. So the herb may not have many branches. The stem has branches but they arise from the base of the plant. And the tree has branches in the upper portion much above the ground. Now we compare the lifespan. Herb की lifespan होती है short. Shrub की lifespan is like many years but lesser than trees. Trees की lifespan काफ़ी होती है. Now we go on to examples. Examples herb के है tomato, mustard, दो examples आप learn कर लीजिए. और shrub की examples है rose, lemon. Examples of tree is given as mango, peepal. So आप कोई भी दो examples learn कर लीजिए. Next we are going to talk about the difference between the climber and the creepers. तो दोनों में similarity अगर पूछे तो similarity क्या है? Similarity is that both have weak stems.
बट क्लाइंबर में क्या है, क्लाइंबर को अगर नेबरिंग स्ट्रक्चर का सपोर्ट मिल जाए ना तो वो क्या करता है, वो क्लाइंब अप करता है, बट इट डज नॉट स्प्रेड हॉरिजॉन्टली, डज इट? नो। बट क्रीपर का क्या है, क्रीपर स्प्रेड्स हॉरिजॉन्टली, रेंगता है ग्राउंड पे, बिकॉज अगर नेबरिंग स्ट्रक्चर भी उसके पास हो तो उसके पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो अपना वेट सपोर्ट कर पाए एंड कैन क्लाइंब अप, सो इट डज नॉट क्लाइंब अप, क्रीपर डज नॉट क्लाइंब अप, इंस्टेड इट स्प्रेड्स horizontally along the soil. Now we go on to examples. Climber के examples है money plant, peas, grapevine. Creeper के examples है pumpkin, muskmelon. Now we go on to adaptations. In camel, I had discussed earlier when I was talking about this chapter. Description box में link है. In camel, long legs are present. Long legs क्या करता है, उसकी बॉडी को एक हाइट पे रखता है जिससे गर्म रेत उसके बॉडी को टच नहीं कर पाए. वाइड हूव्स है जिससे डेजर्ट में मूवमेंट आसान होती है. लेस यूरिन, ड्राई डंग. वाई? बिकॉज दे हैव टू कंजर्व वाटर. हम क्या है, हम है उसका फैट रिजर्व. कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ दैट इट इज वाटर रिजर्व, नो इट इज नॉट. फैट के मेटाबोलाइजेशन से वाटर रिलीज होता है और वो हेल्प करता है फॉर वाइटल फंक्शंस इन द कैमल. नाउ वी डिस्कस अबाउट लोटस. लोटस क्या है, लोटस फ्लोटिंग है या सबमर्ज प्लांट है? लोटस है फ्लोटिंग प्लांट, और फ्लोटिंग प्लांट में क्या होता है, स्टेम जो है वो हॉलो होते हैं जिसमें एयर फिल्ड है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो फ्लोट करता है. एंड देयर इज वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स. वैक्स एंड वाटर डू नॉट गो मिक्स टुगेदर, सो व्हाट हैपेंस, वाटर डज नॉट settle on the leaves of the lotus. Now we go on to the next adaptation, which is in hydrilla. Hydrilla is a submerged plant and leaves are narrow and ribbon like. Why? Because water की currents जो है, flow जो है बहुत तेज रहती है अंडर वाटर. So what happens is leaves के फट जाने का डर रहता है. अगर leaves narrow और ribbon like है तो water आसानी से उसके थ्रू जा सकता है without disrupting the structure of the leaf. Now we talk about cactus. Cactus के spines होते हैं. Basically leaves are reduced to form those spines so that transpiration is less. Transpiration यानी कि water loss on the from the surface of the leaf. इस बारे में, ट्रांसपिरेशन के बारे में हम बाद में कभी पढ़ेंगे. नाउ वी कम ऑन टू डियर एडेप्टेशन. एक एडेप्टेशन है डियर में टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स. वो क्या है, लॉन्ग ईयर्स है जिससे वो सुन पाए. eyes on sides of its head. Why? To observe all around it कि कहाँ से predators आके उसको hunt कर लेते हैं. इस वजह से उनके eyes है दोनों sides पे और long ears है जिससे उनको आहट आ जाए कि predators आ रहे हैं. Now the last question to be discussed is how do dolphins and whales breathe in air when they swim near surface of water? तो उनके पास है एक स्पेशल एडेप्टेशन जिसको कहते हैं ब्लो होल. ब्लो होल आर बेसिकली नॉस्ट्रल्स. डॉल्फिन्स और वेल्स सरफेस पे आते हैं ना तो वो एक्सेल करते हैं एयर एंड वाटर वेपर. सो व्हेन दे एक्सेल इट देन आफ्टर दैट दे इनहेल फ्रेश एयर बिफोर गोइंग बैक. सो they exhale through the blowhole and release the air and water vapor, and then they inhale fresh air before diving back underwater. So what is the keyword over here? Blowhole. So this is the type of adaptation that dolphins and whales have. This is it from me, students. Any doubt, any query, any questions, please do comment or contact me directly at datta.anveshabiotech@gmail.com. I'll be happy to help. Happy learning, students. Bye bye.